Good morning all students. मैं डॉक्टर पिंकी सैनी बॉटनी BS discuss the topic BSc part first paper second for botany. Last recording discussed the albugo and its causes disease of green ear disease of bajra, and then discuss the sclerospora general characters and reproductions. Reproductions already have completed asexual reproductions and second types of reproductions sexual reproductions जो already second sexual reproductions already completed by Oogonia and Antheridia. So it is completed to Antheridial and Oogonial fusions. So fusion by fertilization tubes and last stage are germination initial stage, so meiosis divisions and then mycelium formation, and mycelium are germination then antheridial and oogonial formation. So today discuss the topics about of life cycle of sclerospora. Life cycle of sclerospora. Life cycle of sclerospora. Sclerospora is a reproduction of completed to sexual and asexual reproductions. So life cycle is a completed to haploid or diploid stage. Because asexual reproductions are completed to an stage, so haploid stage, and sexual reproductions are completed to last stage of 2n spore या oospore. So life cycle are completed to haplontic, diplontic types. Haplontic, diplontic type. Haplontic stage are complete asexual reproductions, and diplontic stage are complete by sexual reproductions. Asexual reproductions are haploid spore or formation of asexual reproductions, but diplontic stage are complete to sexual reproductions, because after sexual reproductions are formation of diploid spore. Diploid spores have a 2n nucleus. So sclerospora of completed to life cycle by haplontic diplontic types of spore. ये है इसकी लाइफ साइकिल. अब अपन बात करते हैं इस स्क्लेरोस्पोरा के द्वारा होने वाली डिजीज की. सो स्क्लेरोस्पोरा इज डिजीज कॉज इन बाजरा एंड ग्रीन ईयर डिजीज नेम ऑफ ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा. Green ear disease of bajra. So today discuss the green ear disease of bajra. Bajra belong to Gramineae family. Belong to Gramineae family. Gramineae family of other name of
पोएसी फैमिली, पोएसी फैमिली. Green, green is color, ear means ear, so it is cause of sclerospora disease caused in bajra. Bajra spike are green color like a ear like structures, so it is called of green ear disease of bajra. तो फर्स्ट होस्ट, होस्ट है बाजरा. बॉटनिकल नेम ऑफ बाजरा पैनिसिटम. पैनिसिटम. टाइफॉइड्स, Panicidum typhoides. So botanical characters are underlines and completed. So Panicidum typhoides, botanical name of bajra. So host of a Panicidum typhoides. And then geological distribution. Geographical distribution. Geographical distributions of a growing of first crops bajra. So very rich growing areas Rajasthan and Maharashtra. Rajasthan and Maharashtra, two states of India's and very rich crop of bajra, but other countries like Asia and Africa grow a crop of bajra. So geographical distributions of bajra rich of Rajasthan, Maharashtra and Asia and Africa. And then symptoms. अब अपन बात करें इसके सिम्टम्स की कि जो बाजरा है, बाजरे का जो प्लांट्स है उसके ऊपर किस टाइप से ये डिजीज जो है वो कोज होती है और उस डिजीज की कोज होने से किस किस टाइप से उसके ऊपर सिम्टम्स जो हैं वो हमें दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बाजरे के प्लांट की कि बाजरे का जो प्लांट है उसके ऊपर नोड होते हैं, उसके ऊपर इंटरनोड भी होते हैं और उसके अलावा उस पर लीफ भी होती हैं, उस पर फ्लावर भी होते हैं और उसके ऊपर स्पाइक भी प्रेजेंट होती है। अब अपन बात करते हैं उसके स्पाइक की कि स्पाइक जो है उसके ऊपर कौन प्रेजेंट होते हैं, इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होते हैं कि जो इन्फ्लोरेसेंस होते हैं उसमें ग्रीन कलर के फ्लावर प्रेजेंट होते हैं और जो इसके कारण क्या कोज करते हैं, डिजीज को कोज करते हैं। लेकिन जैसे ही जो लीफ पार्ट है उस लीफ के ऊपर अगर संक्रमण होता है तो उसके संक्रमण से धीरे धीरे जो लीफ ग्रीन कलर की हैं वो येलो और ब्राउन कलर की होना स्टार्ट हो जाती हैं और जैसे ही वो येलो और ब्राउन कलर की होती हैं तो उनकी लीफ का जो लोअर सरफेस वाला पार्ट है वो धीरे धीरे कैसा हो जाता है, वाइट फॉर्मेशन में आ जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो एक लीफ है, इस जो सिम्टम्स हैं
उनमें से फर्स्ट जो सिम्टम्स है वो किस पे कोज होता है, लीफ पे, और जो सेकंड सिम्टम्स है वो किस पे कोज होता है, इनफ्लोरेसेंस पे। किस पे कोज होता है, इनफ्लोरेसेंस पे कोज होता है। जो फर्स्ट सिम्टम्स है वो कोज होता है एक लीफ के ऊपर, और एक सेकंड जो सिम्टम्स है वो कोज होता है इनफ्लोरेसेंस पे। अब अपन बात करें सबसे पहले उसकी लीफ की। अगर लीफ पार्ट के ऊपर संक्रमण होता है तो जनरली लीफ जो है वो कैसे कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है। लेकिन जैसे ही लीफ के ऊपर कॉर्न स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला अपना इन्फेक्शन कोज करता है तो जो लीफ ग्रीन कलर की है वो लीफ अब कैसे कलर की हो जाती है, येलो एंड ब्राउन। कौन से कलर की हो जाती है, येलो एंड ब्राउन कलर की। और जो इन्फ्लोरेसेंस था, ये इन्फ्लोरेसेंस पहले वाइट कलर के थे, ये इन्फ्लोरेसेंस अब कैसे हो जाते हैं, इन्फेक्शन के पश्चात ग्रीन कलर के हो जाते हैं। इसी कारण से इन्फ्लोरेसेंस ग्रीन होने के कारण जो इसकी स्पाइक होती है, ईयर जो होती है इसकी स्पाइक, वो कैसे कलर की हो जाती है, ग्रीन कलर की हो जाती है। तो अपन बात करें इसके सिम्टम्स की, तो फर्स्ट सिम्टम्स इनिशियल स्टेज में किस पे दिखाई देता है, एक लीफ के ऊपर, फिर किस पे दिखाई देता है, वो इन्फ्लोरेसेंस के ऊपर दिखाई देता है। तो जो लीफ हैं जो ये ग्रीन कलर की थी वो ब्राउन और येलो कलर की हो जाती हैं। तो ये जो सिम्टम्स हैं जब इसके ऊपर दिखाई देते हैं तो आगे अपन इसकी बात करते हैं कि इस लीफ के ऊपर ये किस फॉर्मेशन में होता है, एक डाउनी मिल्ड्यू। किसके फॉर्मेशन में होता है, एक डाउनी मिल्ड्यू के फॉर्मेशन में होता है, और इसीलिए इस स्टेज का नाम भी क्या रख दिया जाता है, डाउनी मिल्ड्यू स्टेज। और जो इन्फ्लोरेसेंस है इसके जो सिम्टम्स हैं वो किस पे दिखाई देते हैं, एक जो ग्लूम्स होती है, स्पाइक जो होती है उसके ऊपर दिखाई देते हैं, इसलिए इस स्टेज का नाम क्या रख दिया जाता है, ग्रीन ईयर स्टेज। इसका नाम क्या होता है, ग्रीन ईयर स्टेज। तो जो स्क्लेरोस्पोरा है जब वो बाजरे के ऊपर, अब पैथोलॉजी की भाषा में बाजरे को बाजरा ही कहा जाता है, तो जो बाजरा है, जो पेनिसिटम है, जैसे ही उसके ऊपर इन्फेक्शन होता है तो इसकी बॉडी के ऊपर लीफ और उसका इन्फ्लोरेसेंस जो है वो सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड होता है। तो लीफ जो थी ग्रीन कलर की है, ग्रीन कलर लीव्स आर disorder, so yellow and brown colors, so stage are called downy mildew stage because leaf lower surface are a white powder formation and green colors are disappeared, so stage are called of downy mildew stage. But inflorescence are already white colors, but infection are caused of inflorescence, so white color change into green color, so stage are called of green ear stage. ये पॉइंट्स जो हैं वो हैं टोटल इसके सिम्टम्स के, कि जैसे ही इसकी बॉडी के ऊपर एक पैथोजन अपना इन्फेक्शन करता है तो इस तरीके से इसके अंदर दो स्टेज जो हैं वो हमें दिखाई देती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बाद में अपन इसके ईटियोलॉजी के बारे में। etiology, तो next topics are discussion of etiology. Etiology means name of pathogens and symptoms caused by pathogens on the host plant. So next topics discussion of etiology. ईटियोलॉजी, तो हम क्या कह सकते हैं, पैथोजेंस, सो ऑलरेडी डिस्कशन, स्क्लेरोस्पोरा, ग्रामिनिकोला, स्क्लेरोस्पोरा,
Graminicola. Sclerospora is a obligate endoparasites because it is a infection of other host plants. So obligate and infection only intercellular space. So endoparasites. Only nutrition observation. So pathogens are three types, and first types of saprophyte and second types of parasites and third types of symbiotics. So Sclerospora graminicola are types of parasites. So depend on host plant and living host only infection of living host because it is a obligate endoparasites. So it is a infection only intercellular space. And the next points of pathogens. First points is obligate endoparasites, and second points of food material observed by Hostoria. Food material observed by Hostoria. तो हम क्या कह सकते हैं कि स्क्लेरोस्पोरा फूड मटेरियल को ऑब्जर्व करने के लिए क्या किसका फॉर्मेशन कर लेता है? होस्टोरिया का फॉर्मेशन कर लेता है। ये होस्टोरिया जो है वो कंटिन्यूस क्या करते हैं, उस होस्ट से यानी कि बाजरे से रेगुलर फूड मटेरियल को ऑब्जर्व करते हैं और उससे न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, अवशोषित करते रहते हैं। और ये होस्टोरिया जो हैं वो एक सैक लाइक या फिर ये फिंगर लाइक या फिर क्या बना लेते हैं, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिंगर साइन। और इन फिंगर लाइक होस्टोरियाओं के द्वारा रेगुलर उसकी बॉडी से क्या करते हैं, न्यूट्रिशन का ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला फूड मटेरियल ऑब्जर्व बाय होस्टोरिया। होस्टोरिया इज ए लाइक ऑफ सैक या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। So finger like structures regular food material observes for plant bodies in the plant bodies for Sclerospora graminicola. And then next point of etiology, reproduction. Third point, reproductions. So Sclerospora life cycle are completed to reproductions by two types, asexual and sexual type. Sclerospora of life cycles have a completed two sexual reproductions and asexual reproductions. Asexual reproductions and sexual reproductions are discussed, the completed already completed, are discussed today about. But and then
Sclerospora graminicola cause a disease of grain या disease of बाजरा. So reproductions are completed to asexual reproductions and sexual reproductions, but very deeply discussion not in this topics. इस टॉपिक के अंदर हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, स्टडी नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि हम इसके लिए ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो मैं आपको केवल यहाँ पे एक छोटे से पॉइंट्स के रूप में ये समझाना चाहूँगी कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस है वो एक बिना फर्टिलाइजेशन के हैप्लॉइड सेल्स के बिटवीन होता है और हैप्लॉइड सेल का ही फॉर्मेशन होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन जैसी कोई प्रोसेस नहीं होती. बट एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किसके द्वारा कंप्लीट होता है? एक 2n न्यूक्लियस के द्वारा कंप्लीट होता है. और ये 2n न्यूक्लियस की जो स्टेज है वो इसके अंदर एक कैरियोगेमी, एक प्लाज्मोगेमी एंड आफ्टर मियोसिस कंप्लीटेड होती है. जब तक उसमें मियोसिस नहीं होता तब तक बनने वाले स्पोर्स कैसे होते हैं? 2n होते हैं. यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की जो स्टेज है वो कंप्लीटेड टू 3 टाइप्स स्टेज. तो हम क्या कह सकते हैं कि एक स्क्लेरोस्पोरा जो है वो अपनी रिप्रोडक्शन की जो स्टेज है उसको 3 टाइप से जो है वो कंप्लीट करता है. एंड नेक्स्ट टॉपिक्स आर डिस्कशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी. एपिडेमियोलॉजी एपिडेमियोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाले स्पोर और जो ओ स्पोर हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाता है कि किस टाइप से वो अपना रिप्रोडक्शन करते हैं और किस तरीके से वो अपने ओ स्पोर को प्राइमरी इन्फेक्शन के लिए प्रिपेयर करते हैं. तो अपन आज इसको ब्रीफली डिटेल से देखते हैं कि एटियोलॉजी का मीन्स क्या होता है. सॉरी, एपिडेमियोलॉजी. एपिडेमियोलॉजी एपिडेमियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं ओ स्पोर की. ओ स्पोर आर 2n stage and then after meiosis spore are n spore are germination and then mycelium. So formation of mycelium. So mycelium are n. It is called of epidemiology. And mycelium are infection on host plant. Infection on host plants. So host plants infected by mycelium, it is called of primary inoculation. Primary inoculation. प्राइमरी inoculation. तो हम इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हैं, क्या? प्राइमरी इनोकुलेशन. अब मैं आपको एक बार फिर समझाती हूँ कि एक प्राइमरी जो इनोकुलेशन है वो क्या होता है. जैसे ही वो स्पोर बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आफ्टर, वो स्पोर कैसे होते हैं?
2n स्टेज में होते हैं। ये 2n स्टेज के जो ओ स्पोर होते हैं, ये आफ्टर मियोसिस क्या बना देते हैं, हैप्लॉइड स्पोर, जो या तो एंथीडिया के फॉर्मेशन में होंगे या ऊकोरिया के फॉर्मेशन में होंगे। जैसे ही ये हैप्लॉइड स्पोर अपना जर्मिनेशन करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ माइसीलियम। ये माइसीलियम फर्स्ट टाइम किसको इन्फेक्टेड करेंगे, होस्ट प्लांट को इन्फेक्टेड करेंगे। ये माइसीलियम फर्स्ट टाइम एक होस्ट प्लांट को इन्फेक्टेड करते हैं, सो इट इज़ कॉल्ड ऑफ प्राइमरी इनोकुलेशन। यानी कि जब कोई माइसीलियम, जब कोई स्पोर, जब कोई ऊ स्पोर सेक्सुअल या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करने के पश्चात क्या करे, अपना फर्स्ट टाइम होस्ट प्लांट के ऊपर अपना इन्फेक्शन करे, तो वो इन्फेक्शन क्या कहलाता है, प्राइमरी इनोकुलेशन। फर्स्ट टाइम उसका इन्फेक्शन करना ही क्या कहलाता है, प्राइमरी इनोकुलेशन कहलाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक होस्ट प्लांट जैसे ही अपना प्राइमरी इनोकुलेशन कंप्लीट करता है तो पूरी जो प्लांट बॉडी होती है उसके ऊपर इसका संक्रमण स्टार्ट हो जाता है, एंड देन कंप्लीटेड टू प्रोसेस ऑफ पेनिसिटम टाइफोइडिस इन्फेक्शन। जैसे ही ये ऊ स्पोर अपना इन्फेक्शन करता है तो बाजरे की प्लांट बॉडी के ऊपर इनिशियल स्टेज वाली जितनी प्रोसेस होती है वो पूरी प्रोसेस कंप्लीटेड होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको ऑलरेडी जो है वो विद डायग्राम्स एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि एक बार एंथीडिया बनती है, एक बार oogonia बनती है, दोनों के मध्य फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनती है। उस ट्यूब के द्वारा जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस थे उनके बीच आपस में फ्यूज़न होता है, फ्यूज़न के द्वारा ऊ स्पोर बनते हैं। वो ऊ स्पोर या तो किडनी शेप होते हैं या फिर बीन शेप होते हैं। जो फलियां होती हैं, फलियों के अंदर जो छोटे वाले लेगुमिनेसी वाले दाने होते हैं उनको बीन्स बोलते हैं, मटर लाइक स्ट्रक्चर। तो ये या तो किडनी शेप होते हैं या बीन शेप होते हैं और इनके ऊपर 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। जैसे ही ये फ्लैजिला क्या करती हैं, अपने आप को बॉडी से रिमूव कर देती हैं या अपने आप को लॉस कर देती हैं, तो ये जो किडनी शेप, बीन शेप जो स्पोर बने हैं, ये इस जो स्पोर हैं ये ऊ स्पोर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये ऊ स्पोर आफ्टर क्या करते हैं, अपना रिप्रोडक्शन ना करके केवल मियोसिस स्टेज में आ जाते हैं और आफ्टर मियोसिस ये स्पोर क्या करते हैं, अपने फ्लैजिला को रिमूव कर देते हैं बॉडी से। जैसे ही बॉडी से फ्लैजिला रिमूव हो जाते हैं तो ये ऊ स्पोर अपना जर्मिनेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस हम किस में लिखते हैं, एपिडेमियोलॉजी में। इस एपिडेमियोलॉजी के अंदर भी हम इस पूरी प्रोसेस को, जो मैंने आपको ऑलरेडी 2 बार बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, वही पूरी प्रोसेस किस में लिखते हैं, इसकी एपिडेमियोलॉजी में। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टर है वो आता है इसकी डिजीज़ का कंट्रोल, कि जब कोई पैथोजन जो है वो एक होस्ट प्लांट के ऊपर अपनी डिजीज़ कोज कर देता है तो उस होस्ट प्लांट के ऊपर हम उस डिजीज़ को किस प्रकार से या कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो कंट्रोल मेथड्स हैं वो 3 टाइप्स आर कंप्लीटेड टू डिजीज़ कंट्रोल मेथड्स, फिजिकल मेथड्स, biological methods and chemical methods. So first applied to control methods, physical methods, and second apply methods of biological methods, and last apply methods of chemical methods. तो पहले मैं आपको जनरली समझाती हूँ फिजिकल मेथड्स के लिए क्या किया जाता है। जिस क्रॉप्स में, जिस फील्ड में हमें क्रॉप ग्रो करवानी है उस फील्ड को सबसे पहले क्रॉप रोटेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। मतलब इस वर्ष हमने अगर उस खेत के अंदर किसको ग्रो करवाया है, उस फील्ड में बाजरे को ग्रो करवाया है, तो नेक्स्ट ईयर कम से कम 8 to 10 ईयर या 6 to 8 ईयर्स तक हमें बाजरा ग्रो वापस नहीं करवाना है। ये स्टेज क्या कहलाती है, क्रॉप रोटेशन स्टेज कहलाती है। और नेक्स्ट क्रॉप रोटेशन के बाद में देखा जाता है उसके लिए फिजिकल, जिस प्लांट पार्ट के ऊपर डिजीज़ ने अपने सिम्टम्स कोज किए हैं उस प्लांट पार्ट को हमें क्या करना है, उस फील्ड से हटा के और उसे डिस्ट्रॉय ही करना है, यानी कि उसको हमें नष्ट कर देना है उस प्लांट पार्ट को, जिससे क्या है कि वो इन्फेक्शन जो है